Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I welcome you all in today's session. And as you know that we are talking about leadership, emotional intelligence, and decision making. Our today's topic would also be covering the aspects of emotional intelligence in further detail. And I hope that next time we'll be talking about decision making as well. So if there is any question or query from your side, you can turn on your microphone and discuss as you are doing the critical analysis of the articles I have assigned to you. So any question or query or any comment from your side before I start my discussion related to the new topics we have to cover today? Okay, if no question is coming in, then we're going to start our today's session, and it would be a shorter session in the first meeting, and then inshallah we'll be covering in detail the further sessions after the namaz break. So I start my lecture related to the today's topics. Bismillahirrahmanirrahim. The opening topic of discussion is related with a very interesting idea, and it says that diffuse a challenging interaction. When we are talking about challenging interaction, that is basically referring to a conflict which can take place when two parties are interacting with one another. And remember that whenever two parties are having an interaction with one another, conflict is a natural phenomenon. So much so that it is sometimes said that whenever two people are together, they would always encounter some conflict. Okay, and conflict itself would not be bad. In fact, mismanagement of conflict is bad. Even it is said that if two people are together and they don't have any conflict, so there can be three situations. One, that they are not two. Two, that one of them is a dumb. And three, that either one of them is telling a lie. So if these three conditions are not there, then there has to be a conflict whenever two people are having some interaction. And as I told you that whatever conflict they're going to have is basically in the shape of another alternative, another opinion, and another viewpoint. Because कोई भी दो लोग वो हर चीज को same perceive नहीं कर सकते. Similar perception तो हो सकती है, but it cannot be same. Likewise, they cannot even have the same taste. They cannot even have the same feeling. They cannot even have the same anything. Because हर शख्स जो है, that is a completely independent and unique individual. Okay, in the context of psychological frameworks and in the context of psychological working. So we have to respect conflicts. We have to respect the change processes taking place, and we also have to respect each other because that would be the foremost important thing to manage the things effectively and efficiently. Conflict management may there are different models presented. One of the model I have picked for you, which is a 5-stage model in which we are going to understand the conflict process. The first stage is talking about potential opposition or incompatibility. जहां से conflict का आगाज हम करते हैं, उसमें कुछ antecedent conditions हैं, which may include that there is going to be some communication, there would be some structural design, the place, the environment, the situation in which the interaction is taking place.
and there would be certain personal variables जिसमें के उन लोगों की psychological and physiological details से लेकर उनकी age, gender, tenure, marital status, sect, caste, religion, nationality, उनकी personality traits. There are so many things which are counted. Now, based upon whatever their personal variables are, based upon whatever situational structural details are, and based upon whatever the situation is offering communication in between two parties, the second stage would come, which is talking about cognition and personalization. In this stage of cognition and personalization, there would be certain conflict, which would be either in shape of perceived conflict or in the shape of felt conflict. ठीक है, because conflict का सबसे पहले उसकी existence को prove करना वो जरूरी होगा. So either the conflict is felt like in your sixth sense, in your gut feeling, or either the conflict is actually perceived in terms of its quality and quantity. So either case, at the stage of cognition and personalization, there would be some conflict emerging. ओके और ये भी हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट आपको सिर्फ फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि किसी बात पर किसी ख्याल में, किसी एहसास में मुताबिकत शायद नहीं है, या हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. और समटाइम्स ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एट लास्ट वी एग्री टू डिसएग्री. ओके, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है. सो यू आर हैविंग आइदर द फीलिंग और यू आर एक्चुअली एबल टू मेजर द कन्फ्लिक्ट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट. So once because अगर conflict ना feel हो रहा है ना perceive हो रहा है, फिर तो conflict है ही नहीं ना. तो obviously फिर उसके लिए conflict को पहले prove करना हमें जरूरी होगा कि we should be able to come up with some elaboration of what the conflict is all about. Either it is coming out of some miscommunication, or it is coming out of some situational variance, or it is coming out of some personal variable. So whatever the case may be. So the third stage of the conflict process would be talking about intentions. When we talk about intentions, so अब conflict को tackle करने के लिए, handle करने के लिए, there are 5 intentions generally quoted in the literature, and those intentions can be that either the people are competing with one another, or they are collaborating with one another, or they are in a situation of compromising, or they are in a situation of avoiding, or they are in a situation of accommodating. So ये 5 तरह के हमारे पास strategic aspects हैं कि जिनसे हम conflict को handle करने की कोशिश वो कर सकते हैं. और ये पांचों जो एस्पेक्ट्स हैं ये डिपेंड कर रहे होंगे कि दोनों पार्टीज के मबैन डिग्री ऑफ कंपेटिटिवनेस वो कितनी है, असर्टिवनेस वो कितनी है, और डिग्री ऑफ कोऑपरेशन वो कितनी है. फॉर एग्जांपल, अगर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन भी हाई हो और डिग्री ऑफ असर्टिवनेस भी हाई हो, तो दैट इज अ सिचुएशन ऑफ कोलैबोरेटिंग. अगर फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ कोऑपरेशन और डिग्री ऑफ assertiveness ये दोनों चीजें कम हो, तो इट कैन बी द सिचुएशन ऑफ अवॉइडिंग. ठीक है, अगर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन ज्यादा हो, डिग्री ऑफ assertiveness कम हो, तो दैट कैन बी सिचुएशन ऑफ accommodating. और उसके ऑपोजिट, अगर डिग्री ऑफ assertiveness ज्यादा हो, डिग्री ऑफ कोऑपरेशन कम हो, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ competing. और अगर दोनों मिडिल लेवल पर हो, कुछ आप exert करना चाह रहे हो, कुछ आप कोऑपरेट करना चाह रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, दैट कैन बी द सिचुएशन ऑफ compromising. ठीक है. But as per the word compromising is concerned, I usually do not appreciate that expression a lot. I always say that we should be better going for adjustments. Okay. So whatever the case may be, whatever the situation is, whoever is the person with which you are having some conflict or any conflict, अगला जो स्टेप हमारे पास आ रहा है, that is the situation of stage 4, and that is talking about behavior. Now, in the behavior context, overt conflict जो अब हमारे सामने खुलकर सामने आ रहा है, वाजिया हो रहा है, और उसको हम टैकल करने के लिए डिफरेंट इंटेंशंस का सहारा भी ले रहे हैं. उसके तहत अब द पर्सन एंड द अदर पार्टी, उनके क्या रिएक्शंस और उनके क्या बिहेवियर्स वो इवॉल्व कर रहे हैं. बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अपनी इंटेंशंस के साथ उस इंटरेक्शन को मटेरियलाइज करने की कोशिश करोगे, तो फिर अगली पार्टी का भी कोई ना कोई रिएक्शन वो ऑब्वियसली आपके एक्शन के अगेंस्ट वो होगा. So overt conflict में, when the conflict is like openly elaborated, discussed, felt, perceived, evaluated, and tackled, तो उस वक्त फिर अब parties behavior और other reaction, इनको अब हमें evaluate करना पड़ेगा कि अब
हम इन मामलात को देखें कि दोनों के बर्ताव में, दोनों के एटीट्यूड्स में, दोनों के कॉग्निशन में, दोनों के रद्द-ए-अमल के तौर पर क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं. And the fifth stage would be that there would be some outcomes taking place, outcomes coming up, which can be either the group, the people who are having that conflict, they are going to have the increased performance or the decreased performance. Okay, so either the conflict has taken the shape of functional conflict or dysfunctional conflict. अगर मैं इसको और technical expressions में elaborate करने की कोशिश करूँ, तो functional conflict is something which is coming up with a higher or increased level of performance, and dysfunctional conflict is when there is decrease in the performance or not desirable outcomes are coming in. सो कोई ना कोई उस कन्फ्लिक्ट के एंड पर हमें आउटकम जो है वो यकीनन वो मिल रहा होगा, और फिर हमें ये देखना होगा कि आया वो आउटकम डिजायरेबल है या डिजायरेबल नहीं है. उसके मुताबिक फिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड वो किया जाएगा. तो जनरली स्पीकिंग अगर हम कन्फ्लिक्ट प्रोसेस को देखें तो ये 5 स्टेजेस हमारे पास आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी, उसके बाद कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, उसके बाद इंटेंशंस, उसके बाद बिहेवियर, एंड लास्टली उस बिहेवियर के रिजल्ट्स के तौर पर देयर आर सर्टेन आउटकम्स व्हिच वी आर रिसीविंग. अब इस पूरे कन्फ्लिक्ट प्रोसेस के दौरान बहुत से मूड्स और बहुत से इमोशंस वो भी इवॉल्व करते हैं. अब उन मूड्स एंड इमोशंस में ऑब्वियसली जब कन्फ्लिक्ट एंड इमोशंस जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं, तो उसमें वी कैन बी इन वन ऑफ द 4 सिचुएशंस और 4 कैटेगरीज दैट आइदर वी आर हैविंग हाई नेगेटिव इफेक्ट which may be discussed in terms of being tense, nervous, stressed, upset, or sad, which can be either that we are in situation of high positive effect, which can be alert, excited, elated, happy, or content. It can be the situation of low positive effect, which can be fatigued, bored, depressed, or sad, or it can be low negative effect, which can be calm, relaxed, serene, or content. ओके, सो ये अब हमारे पास डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस हैं कि जिसमें हम इस बात को एलेबोरेट करते हैं कि वो कन्फ्लिक्ट जो है वो किन इमोशंस को कॉज कर रहा है, और फिर ऑब्वियसली उन इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है, उन इमोशंस के बारे में हमें सेंसिटिव होना है, उन इमोशंस को हमें इंटेलिजेंटली डील करना है, हमें सेल्फ कंट्रोल का कॉन्टेक्स्ट वहां पर लेकर आना है, हमें सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्टेक्स्ट वहां पर लेकर आना है, हमें एम्पैथी वो शो करनी है, वहां पर सोशल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना है. वी हैव टू हैव सम सिग्नल्स ऑफ मोटिवेशन विद अस एज वेल. ओके, तो ये तमाम जो इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट हैं, देन दे वुड बी इवॉल्व्ड, जिसमें कि हमें अपने इमोशंस को टैकल करके, चाहे उसके लिए हमें बाज़ औक़ात इमोशनल लेबर भी क्यों ना करनी पड़े, तो इमोशनल लेबर के कॉन्टेक्स्ट से भी होकर आपको सिचुएशन को टैकल करना है, मामला फहमी करनी है, और कोशिश करनी है कि आपके लिए वो ताल्लुक, वो वास्ता, वो रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट. Okay. The next discussion, which is in the context of our articles, that is referring to reframe negative thoughts. That sometimes we have to reframe negative thoughts because negativities जो हैं वो obviously उस conflict को भी aggravate करेंगी और वो dysfunctional context में develop कर जाएगा. तो हमें obviously negative thoughts को reframe करने की जरूरत है. उसके लिए अब हम देखते हैं कि क्या डिटेल हमें provide की जा रही है. When we have to reframe the negative thoughts, it is said that to experience and then let go of difficult things. Okay, उस मकसद के लिए क्या करना होगा? There are few suggestions as advised by the author, and they are: number 1, focus on other person's intentions. आप दूसरे की जो नियत है, दूसरे का जो इरादा है, दूसरे का जो कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे का जो व्यू पॉइंट है, आप उसको भी तो इवैल्यूएट करें ना. आप ये भी तो देखें कि आप बजाय इसके कि सिर्फ उसको अपनी अना का इशू वो बना ले, आप दूसरे की बात को समझने की कोशिश भी करें और उसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखने की कोशिश करें. तो फोकस ऑन अदर पर्सन्स इंटेंशंस एंड ऑन द फैक्ट्स, कि उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या मुहैया किए गए थे, उसके पास क्या ग्राउंड रियलिटीज थी, उसके पास क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसकी बुनियाद पर उसने सर्टेन अपने बिहेवियर्स और सर्टेन कंक्लूजन्स वो ड्रॉ किए हुए हैं और जिनकी वजह से हो सकता है कि आपके साथ उसका मिसमैच वो हो रहा है. So if you discover that your employee or any other person who is having an interaction with you had legitimate reasons for not showing up at a weekly meeting, your annoyance will may fade away. ओके, तो ये इस बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इस पूरे सेंटेंस में. मुझे सबसे खूबसूरत एक्सप्रेशन यही लगा कि लेजिटिमेट रीजंस, कि अगर आपके पास कोई पता चल जाए कुछ लेजिटिमेट रीजंस
कि जिनकी बुनियाद पर दूसरा शख्स ऐसा बर्ताव कर रहा है या ऐसा उसका रिएक्शन नमूदार हो रहा है या ऐसा उसकी थॉट है या ऐसे उसके अल्फाज हैं, तो फिर आप उसको मुआफ करने की कैपेबिलिटी में भी आ सकते हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली उसके लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ परखना पड़ेगा, कुछ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तौर जान सकते हो कि अगला शख्स क्यों कर किसी कॉन्टेक्स्ट को सोच रहा है या उसके ऊपर बात कर रहा है। जैसा हमने टोटल लीडरशिप की एक्सरसाइजेज में भी बारहा इस बात का जिक्र किया कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ लाइफ जो है, जिसको कि हम 4 डोमेन्स भी कहते हैं, 4 वे विंड्स भी कहते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपका कम्युनिटी, वहां के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स के साथ हम शेयरिंग करते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भी एक्ट और रिएक्ट करें। हम ड्यूटीज एंड राइट्स की बात करते हैं, हम आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स का एहसास करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तमाम तर हमारी कोशिशें इस सेंस में हैं कि हम लेजिटिमेट रीजंस वो ढूंढ सकें जिन रीजंस की बुनियाद पर हमारे अंदर जो माफ करने का मादा है, जो माफ करने का स्टाइल है, जो एक दूसरे की बात को समझने का कॉन्टेक्स्ट है, वो पैदा हो सके और हम एक दूसरे के ताल्लुक और वास्ते के अंदर बर्दाश्त और सब्र के एलिमेंट को लेकर आ सकें और ये जान सकें कि अगर हम गलती कर सकते हैं तो दूसरे भी गलती कर सकते हैं, और अगर हमें उसका एक्सक्यूज मिलना चाहिए तो दूसरों को भी उस बात का एक्सक्यूज वो मिलना चाहिए। सो ये बहुत तवील गुफ्तगू इसके ऊपर की जा सकती है, लेकिन स्टिल हमें लेजिटिमेट रीजंस अगर पता चल जाएं और हम लॉजिकली और रैशनली चीजों को परख सकें, जान सकें, मान सकें, तो उस वक्त फिर कोई जवाब बाकी नहीं रह जाता कि आप नेगेटिव थॉट्स को फर्दर प्रमोट वो करो। सेकंड, आपका ऑथर कहता है कि एग्जामिन योर कंट्रीब्यूशंस टू द प्रॉब्लम। Okay, if you realize that you have accidentally advised an employee to focus on an unnecessary task, your frustration may dissipate. ओके, सो बाज़ औक़ात गलती हमसे भी हो सकती है, बाज़ औक़ात हम भी किसी प्रॉब्लम का कॉज वो बन सकते हैं। मैंने एक दफा पहले भी इसको एक और अंदाज में बयान किया था कि देयर इज अ सिन इन सिंसेरिटी एज वेल। सो बाज़ औक़ात आपका होना ही प्रॉब्लम का कॉज वो हो सकता है कि बन रहा हो। बाज़ औक़ात आप ही की तरफ से इनिशिएटेड कोई ऐसा एक्सप्रेशन, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सोच हो सकती है कि जो सारे फसाद की जड़ हो। सो आइदर केस अगले को भी एक्सक्यूज देने की कोशिश करें, अगले को भी फ्लेक्सिबल कॉन्टेक्स्ट में आप एवेल्युएट करें, उसके पास भी लेजिटिमेट रीजंस हो सकती हैं और गलती आपसे भी हो सकती है, जैसा उसने यहाँ पर लिखा कि एग्जामिन योर कंट्रीब्यूशंस टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपना भी कथारसिस करना, अपना भी एनालिसिस करना, अपने बारे में भी सेल्फ अवेयर रहना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली शर्त है। सो आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को सोचना, परखना, जानना वो होगा ताकि बेहतर फैसला हो सके, बेहतर अंदाज से हम सिचुएशन को टैकल वो कर सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि यू आल्सो नीड टू क्वेश्चन योर assumptions. Question your assumption से मुराद ये है कि if you find your belief that a colleague doesn't value product quality is mistaken, you may feel less anger over her tendency to take shortcuts. ठीक है, सो अगर किसी शख्स में किसी बात को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप उसको एक मार्जिन ऑफ डाउट वो दे सकते हो। इसी तरह अक्सर औकात लोग अपने फैसलों में शॉर्टकट्स को यूज करते हैं। शॉर्टकट्स जब हम फैसलों में लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टिपिकल एक्सप्रेशन है नोन एज ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है जजमेंटल शॉर्टकट्स, जैसे कि जुज को देखकर कुल पर फैसला कर लेना, या कुल को देखकर जुज पर फैसला कर लेना, या रिसेंसी एरर में चले जाना, या लीनियंसी और सेवेरिटी एरर में चले जाना। सो देयर कैन बी बहुत सारे ह्यूरिस्टिक्स पीपल यूज। इसके बैकएंड के ऊपर हमारी सर्टेन प्रेजुडिस एंड बायस्ड एटीट्यूड्स भी कार फरमा वो हो सकते हैं। सो फैसला करने के दौरान पीपल यूज ह्यूरिस्टिक्स, कोई भी डिक्लेरेशन देने के दौरान पीपल यूज ह्यूरिस्टिक्स, तो उनको उसका मार्जिन हमें देना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि बाज लोगों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है या वो कैपेसिटी नहीं है कि उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, तो आप अपने अल्फाज बदलकर, आप अपना अंदाज बदलकर उस चीज को बेहतर तौर कम्युनिकेट कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। ओके, इसी तरह योर गोल in reframing negative thoughts is to be able to express your complete range of emotions without judging or blaming the other person. ओके, तो आपके अपने भी अंदर जो कुछ भी कारफरमा हो रहा है, जो कुछ भी रूनुमा हो रहा है, उसको भी आप कोई अल्फाज दे पाओ, उसको भी आप एलेबोरेट कर पाओ, उसको भी आप कम्युनिकेट कर पाओ। और बहुत बड़ी गलती यहां पर जो लोग कमिट करेंगे वो ये होगी कि वो अल्फाज का गलत चुनाव करेंगे।
और गलत अल्फाज का चुनाव बजाते खुद एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। सो आपको बड़ा केयरफुल रहना है कि आप अपने जज्बे को, आप अपनी बात को, आप अपने इजहार को किन अल्फाज में एलेबोरेट वो कर रहे हो, और क्या वो अल्फाज अप्रोप्रिएट थे उन तमाम बातों के लिए कि किसी और अंदाज या किसी और बात को बयान करके आप बेहतर तौर अपने मायने को दूसरे तक कम्युनिकेट वो कर सकते हो। तो हम अल्फाज के गलत चुनाव में भी क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात अपने जज्बात को भी अल्फाज गलत दे देते हैं, तो उससे अगले के जहन में जो ख्यालात नमूदार होंगे ऑब्वियसली वो भी वैसे ही होंगे कि जैसे हमने अल्फाज उनके लिए चुने, बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल कि वो उस आपके एनकोडेड एक्सप्रेशन को उसी तरह डिकोड कर पाए जैसा कि आप अपनी इंटेंशंस वो कैरी कर रहे हो। तो हमें केयरफुल रहना है कि हम किस तरीके से लोगों के साथ राब्ता और मामला वो किए हुए हैं। इसके बाद आपका ऑथर डिस्कशन शुरू करता है रिलेटेड टू दैट न्यूट्रलाइज अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। और जब हम अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, और उन सिचुएशंस में वो आपको एडवाइस करता है आपका ऑथर कि आपको क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार वो करना चाहिए। सो हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज टैकलिंग अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स। इन अनप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में इफ द अदर पर्सन इज एग्रेसिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, फर्ज करें कि ऐसा मामला हो जाता है कि जिसमें दूसरा बंदा एग्रेसिव हो गया, डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, तो वहां पर आपको क्या करना है। यहां पर अब आपका ऑथर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट कुछ एडवाइसेस वो प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर अदर पर्सन इज एग्रेसिव एंड डिसरिस्पेक्टफुल, ट्राई टू नंबर 1 कमांड रिस्पेक्ट बाय रिमेनिंग काम। ओके, तो रिस्पेक्ट का दामन किसी भी सूरत कोशिश करें कि हाथ से ना छूटे, और यू हैव टू रिमेन काम। अगर दूसरा बंदा एग्रेसिव हो रहा है, आपको कम से कम यू हैव टू रिमेन काम, यू हैव टू यूज योर आयरन नर्व्स समटाइम्स। ओके, नंबर 2 वो कहते हैं ट्राई टू इंटरप्रेट वर्बल अटैक्स बाय रिपीटिंग द पर्सन्स नेम। ठीक है, अगर आप उस शख्स का नाम लेकर मुखातब उसको करें और इंटरप्रेट डिफरेंट चीजों को कि वो आपको क्या कह रहा है और उसका क्या मतलब है, अगर आप वो उसका नाम लेकर बात करेंगे तो उससे उसका जो एग्रेशन है उसमें डाइवर्जन आने के चांसेस वो हो सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कम्युनिकेट योर बॉटम लाइन। कम्युनिकेट योर बॉटम लाइन बड़ा एक टिपिकल एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है जिसमें कि आपका ऑथर एडवाइस करता है, अगर उसने इनवर्टेड कॉमर्स में उसको बकायदा एलेबोरेट किया एक्सप्रेशन को कि when you are ready to speak to me with respect, I'll take all the time you want to discuss this। ठीक है, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करें, एग्रेशन का जवाब एग्रेशन देने से मसला हल नहीं होगा। ठीक है, सो बॉटम लाइन कैन बी व्हेन यू आर रेडी टू स्पीक टू मी विद रिस्पेक्ट, सो विल डिस्कस इट फर्दर। ओके, तो आप सिचुएशन को टैकल करें और साथ उसको मैसेज भी कन्वे कर दें कि दैट पर्सन इज एक्टिंग इन ए डिसरिस्पेक्टफुल मैनर। तो अक्सर औकात प्रोफेशनल लाइफ में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात हो सकते हैं कि जिसमें कोई भी हमारा रिश्ता नाता, कोई भी हमारा ताल्लुक वास्ता वो बाज़ औकात एग्रेसिव हो सकते हैं। वो बच्चे हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, वो बॉस हो सकता है, वो सबॉर्डिनेट हो सकता है, वो कस्टमर हो सकता है, वो पब्लिक इन्वायरमेंट में कोई शख्स हो सकता है कि हु हैज गॉन एग्रेसिव। तो ऑब्वियसली वहां पर हमें काम रहना है और रिस्पेक्टफुली चीजों को टैकल करना है। राइट जी, यहां पर अब हम एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं।